sir. Yes, sir. Good morning, everyone. How are you all? I am fine, sir. I'm fine, sir. What about you? I'm also fine, Peter. But in today's English session, we are going to solve questions. We are going to answer the exercises, the questions based on the uh, session, based on the topic what we learned in our last class. In our last class, what we did study? Can anybody tell me? Do you remember anything? What we did study in our last class? Verb, preposition, collocate. ये तो पढ़ा था. So let us start. Let me open the book so that we can start the session for today. But this thing we studied yesterday. Actually, these are the where verb and prepositions are used together. Okay. Also, we read some of the lines from the book where verb has been used with the preposition. तो verb preposition एक साथ कब और कैसे, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी preposition किसी भी वर्ब के साथ आप जोड़ करके लिख सकते हैं. There are some of the preposition that can be used with the specific. We have to read, we have to study these things in this section. तो लास्ट सेक्शन में थोड़ा बहुत आपको कुछ बताया गया था. अडैप्ट टू का यूज कब करेंगे, एडहेयर टू का यूज कब करेंगे, अवेयर ऑफ का यूज क्या करेंगे और इसका क्या सेंस निकलेगा. बेस्ड ऑन दीज थिंग्स टुडे वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस. ओके. Yes, sir. So the first question is identify incorrect verb preposition combinations in these sentence and correct them. There are 5 sentences. You all need to identify that कि verb preposition कौन से verb preposition का combination गलत है. पहली बात verb preposition पहचानना आना चाहिए. अब कौन सा verb preposition का combination गलत है, अगर गलत है तो उसको दोबारा आपको correct भी करना है. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. The first sentence. सिद्धार्थ जी जरा पहली लाइन पढ़िए. The car stopped in the medium of the flyover. What you are reading? I'm asking to read you the first line of the first question. A, option A. This line you need to read. The car stopped in the middle कार of stopped, the. पहली बात तो stopped गलत बोल रहे हो, stopped होता है. और दूसरी बात कहाँ पे पढ़ रहे हो ये? You are not looking at your screen. अपने screen पे देखिए where I'm focusing, where I'm indicating. What is this? What is this? क्या लिखा है ये? Sir, Uncle Shyam instead at playing for the ice cream. ये क्या लिखा है? Sir, instead. इनी है, एन के बाद आई है. क्या लिखा है जरा इसको अंश पांडे आप पढ़िए, क्या लिखा है ये? इनिस्ट. अरे बेटा आई एन इंसिस्टेड तुम्हारे चक्कर में मैं गलत बोलना शुरू कर दूंगा. इंसिस्ट किया जाता है ना, उसी से इंसिस्ट से इंसिस्टेड बना हुआ है. अंकल श्याम इंसिस्टेड एट पेइंग फॉर द आइसक्रीम. इंसिस्ट करना मतलब थोड़ा सा दबाव डालना. समझ में आया? अब इसमें आपको ये आपको वर्ब है और एट आपका प्रीपोजिशन है. तो इंसिस्ट के साथ क्या एट आएगा? आप लोगों को बोला गया था ये सब पढ़ने के लिए पूरा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा. इसमें कुछ यहाँ पे कुछ वर्ब के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन आएंगे ये सिखाया गया होगा. अब आप यहाँ पे देखिए इंसिस्ट यहाँ पे है,
तो इंसिस्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आ सकता है? सर ऑन और अपॉन। ऑन या रेड भी that means with the insist verb you can use the on or upon preposition. That is a correct combination of verb and preposition. तो यहाँ पे जो combination है insisted at, क्या ये सही है? क्यों? क्या ये सही है? गलत है? तो फिर इसको आपको काटना है, आपको सब मिला के काटना क्या है? You have to insisted at के बजाय यहाँ पे क्या होगा? सर ऑन ऑन होगा. यू हैव टू राइट. आपको एक दूसरा सेंटेंस भी लिखना है एंड ऐड के जहां पे क्या हो जाएगा? ऑन. किसके जहां पे? लेट मी राइट. यस, टेक द अनदर कलर. ऐड की जगह पे ये ऑन हो जाएगा. ओके. अंकल श्याम इंस्ट्रक्टेड ऑन पेइंग फॉर द आइसक्रीम. अंकल श्याम जो है इन्होंने इंसिस्ट किया किस पे? फॉर द पेमेंट ऑफ आइसक्रीम. आइसक्रीम के पैसे देने के लिए. ओके. नाउ yes sir. यस सर। the council objected about the use of polythene in the city. Now the council objected about the use of polythene in the city. In the second line, which one is the verb? First of all, you all need to identify this one. Which word is a working? Which word is an action word? इस सेंटेंस में कौन सा एक्शन हो रहा है? कौन सा एक्शन वर्ड है? अविरल. Yes sir. Which one is the action word? Deepika Verma. Which one is the action word in the second line? सर यूज। बेटा यहाँ पे यूज बताया जा रहा है. चलिए ठीक है. यूज इज यहाँ पे क्या? पहले इस लाइन का मतलब मुझे समझाइए पूरे. द काउंसिल ऑब्जेक्टेड अबाउट द यूज ऑफ पॉलिथीन इन द सिटी. इसका मतलब समझ में आ पा रहा है? क्या है इसका मतलब? किसी को भी समझ में आ रहा है? एनीबॉडी कैन ट्राई. कोई जरूरी नहीं सबका सही हो जाए, लेकिन आप क्या समझ पा रहे हैं तब बताइए, तब फिर मैं समझाऊं. दीपिका, अरुण, प्रिया, अविरल, कोई भी बताइए. अविरल बताइए. सर काउंसिल ऑब्जेक्ट पॉलीथीन को सिटी में यूज करने की वो सलाह दे रहा है. द काउंसिल ऑब्जेक्ट. अच्छा, द काउंसिल तो एक काउंसिल हुआ, मतलब एक संगठन हुआ. ऑब्जेक्ट मीन्स क्या हुआ? ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टेड, ये क्या है? सर वस्तु। ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु. बेटा मना करना भी होता है. ठीक है. मना करना मतलब क्वेश्चन करना. द काउंसिल ऑब्जेक्टेड. काउंसिल ने ऑब्जेक्ट किया, क्वेश्चन मार्क उठाया. किस पे? अबाउट द यूज ऑफ पॉलिथीन इन द सिटी. किसके बारे में? द यूज ऑफ पॉलिथीन. पॉलिथीन के यूज में. तो ये पॉलिथीन के यूज जो सिटी में, सिटी के अंदर पॉलिथीन के यूज पे काउंसिल ने ऑब्जेक्ट किया. तो पॉलिथीन के यूज पे ऑब्जेक्ट किया, लेकिन कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे? यूज का काम हो रहा है या ऑब्जेक्ट करने का काम हो रहा है? सर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट करने का काम हो रहा है. दीपिका, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा. बेटा दीपिका, अगर आपके फोन से अगर कोई दूसरा और फोन कनेक्टेड है तो आपका नेट प्रॉपर नहीं चलेगा. एक समय पे एक ही ऐप यूज करें तो आपका नेट प्रॉपर चलेगा. अदरवाइज योर सेशन वुड बी गोइंग टू बी मतलब योर सेशन इज गोइंग टू बी वेरी योर सेशन इज गोइंग टू बी द वर्स्ट कंडीशन. खराब हो जाएगा, खराब होने वाला है. योर सेशन वुड बी स्पॉइल्ड ड्यू टू द नेटवर्क. अगर आप यहाँ प्रॉपर एक समय पे एक ऐप नहीं यूज कर रहे हैं, और अगर वाईफाई से या हॉटस्पॉट कनेक्ट करके कोई दूसरा फोन भी आपके फोन से कनेक्टेड है तो इट्स रॉन्ग. तो आपका सेशन नहीं चलेगा. एक समय पे एक मोबाइल चलना चाहिए. द काउंसिल ऑब्जेक्टेड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट करने का काम हो रहा है. नाउ द वर्ब, तो आपने ये समझ लिया वर्ब यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट. अब प्रीपोजिशन वर्ड कौन सा है इन द सेकेंड लाइन? विच वन इज द प्रीपोजिशन?
कोई भी बताइए, एनीबडी कैन स्पीक, सिद्धार्थी, प्रिया, अबाउट Sir, about. preposition word. Now what you have to, क्या क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट वर्ब प्रीपोजिशन, जो भी वर्ब प्रीपोजिशन है वो इनकरेक्ट है या नहीं, पहले ये देखिए। अब ऑब्जेक्ट के साथ क्या अबाउट लगता है, ऑब्जेक्ट के No, साथ sir. लगता था। मैंने आप लोग को एक टास्क दिया था, आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये सारी यहाँ पे कई सारे वर्ब के साथ कौन से, व्हाट शुड आई राइट हियर, ऑब्जेक्ट अबाउट, अबाउट की जगह पे Sir, two. Sir, two. the object is at टू लगता है, तो what you all need to write, you all need to cross it, incorrect, ये about आपका incorrect है, इसके जहां पे आपको क्या लिखना है, two. Okay, now the next one, the third line is combine the egg yolk mixture with the flour and stir. Combine the egg yolk mixture with the flour and stir. Stir. चलिए ठीक है, अब इसमें बताइए which one is the verb, कौन सा वर्ब है, इसमें क्या वर्ब लग रहा है आप सभी को, कोशिश करिए, कोई भी बताइए। Combine. Say combine. कंबाइन, बेटा सबसे पहले वर्ब आ जाएगा बाबू, क्या Sir, mixer. क्या किसी सेंटेंस में सबसे पहला वर्ड वर्ब होगा, No, sir. तो Sir, mixer. आपका मान लीजिए अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तब तो चलो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, ये आपका यहाँ पे फुल स्टॉप दिख रहा है, तो सबसे पहला वर्ड आपका कंबाइन, आपका क्या कभी वर्ब को एज ए नाउन भी तो कई बार यूज किया जाता है, वर्ब को किसी अदर फॉर्म में भी तो यूज किया जाता है, इसलिए अभी कोशिश करिए इसमें क्या है, इस सेंटेंस का मतलब निकालिए, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा, जैसे आपने यहाँ पे किया था ना, ये मत सोचिए यूज तो आपका वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो वर्ब है, लेकिन जब पूरे सेंटेंस का मतलब आप निकालेंगे तब आप देखिए कि इसमें कौन सा काम होने का, इस लाइन में, इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम किया जा रहा है। इसी तरीके से आप थर्ड लाइन भी आप एक बार पढ़िए, इसका मतलब समझिए क्या है, कोशिश करिए जल्दी से। ये यॉक ये क्या है, मिक्सचर, कंबाइन द एग यॉक मिक्सचर, ये एग यॉक क्या होता है, कैन एनीबॉडी स्पीक अबाउट दिस वन। Sir, अंडे का अंडे का क्या, हाँ फिर से बताइए क्या होता है, दीपिका फिर से कोशिश करिए, अंश पांडे कुछ आप बताएं। अंडे का पीला भाग, अंडे का जो पीला वाला भाग होता है दैट इज नोन एज अ, Yes, sir. जब मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है ये भी मूव कर रहा है, इसको पहले मुझे इरेज करने दीजिए, तो दोनों समझा ही दिया गया है। द कंबाइन द एग यॉक, एग यॉक ये क्या है, नाउन है, ये कंबाइन करने के लिए कह रहा है, मिक्सचर विद द फ्लोर एंड स्टिर, क्या ये गलत है, No, sir. इट्स ए करेक्ट वन, ये गलत नहीं है, मिक्सचर को अगर आप कंबाइन द एग यॉक मिक्सचर, एग यॉक मिक्सचर को कंबाइन करने के लिए कहा गया है किससे, द फ्लोर एंड स्टिर, दैट मींस कि दिस इज द करेक्ट वन, यू डू नॉट ट्राई टू एनीथिंग हियर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। प्रिया जरा आप चौथा पढ़िए, फोर्थ लाइन। Yes, sir. It is generally believed that people from the southern part of India perfect coffee over tea. It is generally believed that people from the southern part of India prefer coffee over tea. अब now
इट इज जनरली बिलीव दैट, ऐसा कि विश्वास किया जाता है, क्या जाता था, इट इज नहीं जाता है, बिकॉज इट इज जनरली बिलीव्ड, ये क्या है, ये तो इज की वजह से ये पैसिव वॉइस में लिखा है, आपका ये प्रेजेंट टेंस है। इट इज जनरली बिलीव दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है या ऐसा माना जाता है कि पीपल फ्रॉम द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लोग प्रेफर कॉफी ओवर टी, जो कॉफी है वो टी की जगह पे ज्यादा तरजीह देते हैं कॉफी को, तो कॉफी ओवर टी होगा, मीन प्रेफर कॉफी ओवर टी होगा या क्या होगा बेटा? पेपर टू। प्रेफर, अभी आप यहाँ पे प्रेफर का यूज आपको यहाँ पे दिया गया है, हाउ यू शुड राइट टू। प्रेफर टू, यहाँ पे लिखा है ना हाउ यू वांट टू यूज। अगर आपको बोलना आई प्रेफर वॉकिंग टू जॉगिंग, जॉगिंग, हमें जॉगिंग की जगह पे वॉकिंग पसंद है, तो इसके लिए क्या, हाउ यू नीड टू राइट, आई प्रेफर वॉकिंग टू जॉगिंग। प्रेफर का यूज हमेशा टू के साथ किया जाता है, यू ऑल नीड टू रिमेंबर दिस वन। इसको आप लोगों ने पढ़ा नहीं ध्यान से, मुझे लग रहा है, बहुत इजी है। प्रेफर कॉफी ओवर टी, अब यहाँ पे प्रेफर वॉकिंग टू जॉगिंग के जहां प्रेफर वॉकिंग ओवर जॉगिंग थोड़ा होगा, यहाँ पे जब आपको रूल समझा दिया गया तो रूल्स को समझ करके फिर आपको वही एक्सरसाइज में आपको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रेफर कॉफी ओवर, सही है या गलत है? सर गलत है सर, गलत है। क्या होगा, क्या होगा? सर प्रिपेयर टू। टू होगा, क्या होगा? टू होगा। अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने आप सही कर ले जाएंगे ना। यस सर। यस सर। द लास्ट वन, लास्ट देखिए, वन शुड नॉट फीड इन गॉसिप, वन शुड नॉट फीड इन गॉसिप, व्हाट शुड आई राइट हियर एंड व्हाट इज इनकरेक्ट हियर? आप यहाँ पे वन फीड इन, एग्रीमेंट देखिए, कॉम्बिनेशन देखिए, क्या है सही क्या गलत है। फीड इन गॉसिप होगा या फीड, क्या होगा? फीड के साथ इन सही लगा है, फीड ऑन होगा, ये फीड ऑन होगा, बिकॉज इफ यू लुक हियर you have this one in within your book or not? फीड का यूज बताया गया है कहीं पे कि नहीं बेटा? सर पोएम के लाइंस में है, पोएम के लाइंस में है, बहुत अच्छी दीपिका, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यस, फीडिंग ऑन माई मदर, फीड के साथ ऑन प्रीपोजिशन हमेशा यूज होता है, फीड के साथ ऑन प्रीपोजिशन होता है, तो दैट मीन्स कि वन शुड नॉट फीड ऑन गॉसिप, that is the correct one. ओके, अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, क्या करना है, कैसे करना है, एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व कर रहे हो सर। इस सेक्शन में करना था, क्या ध्यान देना था वो भी समझ में आने लगा होगा। बहुत लोग यस सर करते हैं। अच्छा बेटा, वन मोर थिंग, देयर इज अ प्रॉब्लम विथ माय सॉफ्ट कॉपी। नाउ व्हाट द पेज आई एम हैविंग आफ्टर द फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो उल्टा स्कैन हो गया है, तो मैं बुक यूज करूंगा अभी एंड आप लोग भी अपनी बुक देखिए। सो आफ्टर द फर्स्ट वन देयर इज अ सेकंड क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन इज दैट यू ऑल नीड टू मैच द फ्रेजेस फ्रॉम द टू कॉलम्स टू फॉर्म अ सेंटेंस। यहाँ पे पहले कॉलम में कुछ फ्रेज हैं और दूसरे कॉलम में फ्रेज है, इन दोनों को आपको क्या करना था, एक बार पढ़िए पहला सेंटेंस। बेटा समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी पढ़िए जिससे सारे क्वेश्चंस आज डिस्कस हो जाए। दीपिका पढ़िए इसको, क्या लिखा है ये किसके साथ मैच होगा? सर ये थर्ड के साथ मैच होगा। क्या है ये, क्या है ये, क्या लिखा है, जरा मैच करके बताइए। इफ यू कॉन्ट्रेट, बेटा कॉन्सेंट्रेट नहीं, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट करते हैं ना, कंसंट्रेट करो। ऑल्सो यू ऑल नीड टू कंसंट्रेट, दिस इज द कंसंट्रेट। If you concentrate on an object for long enough, you can move it. Yes, Deepika is correct. The first phrase of the column A, you have to match with the third one from the column B. क्या होगा सही, जो इसका मैच द फॉलोइंग मिलाने के बाद जो सेंटेंस बनेगा, क्या बनेगा? If you concentrate on an object for long enough, you can move it.
तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला जो है तीसरे से मैच होगा, दैट इज करेक्ट। नाउ रीड द सेकंड वन। आवर नेक्स्ट डोर नाइबर प्रोहिबिटेड अस, जो आवर नेक्स्ट डोर नाइबर, जो हमारे बिल्कुल सामने वाला जो नाइबर है, पड़ोसी है, प्रोहिबिटेड अस, वो उन्होंने हमें, प्रोहिबिटेड मींस जानते हैं वर्जित करना, वर्जित किया है हमें। किससे किससे प्रोहिबिटेड किया है? आप जो बाकी Sir, 4 बचे हैं, Sir, from entering Sir, from from entering entering her her garden. वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा तो है नहीं, प्रोहिबिटेड एज ऑफ द जार फ्रॉम इट्स साइज, कहीं पे भी कोई मतलब नहीं लग रहा है, इससे कोई मीनिंग फुल सेंटेंस नहीं बन रहा है ना। अगर हम दूसरे वाले को लास्ट वाले से एक बार जोड़ने की कोशिश करें, देखिए, आवर नेक्स्ट डोर नाइबर प्रोहिबिटेड अस फॉर ब्रेकिंग हर ग्लास विंडो, उसका अपना ग्लास का विंडो तोड़ने के लिए मना किया है, पहले अलाउ किया था, वो मना और अलाउ की चीज तो है नहीं। हाँ, फ्रॉम इंटरिंग हर गार्डन, अब फ्रॉम इंटरिंग हर गार्डन आप लोगों ने बताया, वही सही भी है। द सेकेंड फ्रेज वी हैव टू मैच विद द फर्स्ट वन इन द कॉलम बी, तो दूसरा जो है पहले से के साथ मैच हो जाएगा, दैट इज गुड। नाउ रीड द थर्ड वन, तीसरा ये, द मैन इज गिल्टी, द मैन इज गिल्टी, मैन को, जिस आदमी को पछतावा था किस चीज के लिए? सर फोर्थ वाले से, सर फोर्थ वाले से मैच होगा। Sir, किस चीज के लिए पछतावा होता है? ऑफ स्ट्रगलिंग लेवल आर्ट, बिल्कुल सही है। द मैन इज गिल्टी हैज टू बी मैच्ड विद द स्मगलिंग वैल्यूएबल अफेक्ट्स, इसके वजह से उसको पछतावा हुआ, उस गिल्टी महसूस हुआ। नाउ द फोर्थ, यस सर, द ओल्ड लेडी फॉरगेट द बॉयज, जो ओल्ड लेडी थी उसने लास्ट वाले से बॉक्स को, जो सर, बॉक्स को फॉरगेट कर दिया, क्षमा कर दिया, किसके लिए? सर फॉर ब्रेकिंग हर ग्लासेस। मैच खेल रहे होंगे, क्रिकेट खेल रहे होंगे, उसके ग्लास, विंडो की ग्लास तोड़ दिया होगा, उसके लिए फॉरगेट कर दिया, सोचा कि चलो बच्चे हैं, अब बच्चे हैं, लेकिन अब बच्चे को बच्चे जैसे बार यू आर करेक्ट। द ओल्ड लेडी फॉरगेट द बॉयज फॉर ब्रेकिंग हर ग्लास विंडो। द लास्ट वन, कैन यू गेस द वेट? कैन यू गेस द वेट? सर ये सेकंड वाला, ये सेकंड वाला पार्ट विद हर पेट डॉग। जब पढ़ना तो चाहिए, सो दैट कभी आपको एग्जाम में आ जाए तो आपको समझ में आए, उसका मीनिंग तो पता चले। इफ यू कैन यू गेस द वेट, क्या आप वेट गेस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं किसका वेट? फ्रॉम इंटरिंग हर गार्डन, नहीं, ये तो होगा ही नहीं। ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर लॉन्ग इनफ यू कैन मूव इट, नहीं, ये भी नहीं मतलब निकल रहा है। गेस द वेट ऑफ स्मगलिंग वैल्यूएबल इफेक्ट, ये भी नहीं मतलब निकल रहा है। क्या है? गेस द वेट ऑफ द जार, किसी जार का वेट आपको गेस करना है फ्रॉम इट्स साइज, उसकी साइज को देखते हुए। तो दैट मींस कि द फिफ्थ वन हैज टू बी मैच्ड विद द सेकंड वन फ्रॉम द कॉलम बी। दैट्स ओके? डन? यस सर, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। यस सर, Question number 3. Now you all have to complete the sentence with the correct verb preposition combination. अभी verb preposition का combination आप लोग को सिखाया गया है, आपको उन्हीं का यूज करते हुए आपको इसको भी कंप्लीट करना है। The first line is in many team sports each team. अब वर्ब और आपको वर्ब और प्रिपोजिशन दोनों यूज करना है। अब कौन सा वर्ब और प्रिपोजिशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। इन मेनी टीम स्पोर्ट्स ईच टीम, अब ऐसे में अगर आपको बोलना हो इन मेनी टीम स्पोर्ट्स, बहुत सारे टीम स्पोर्ट्स में ईच टीम 11 प्लेयर्स, ईच टीम क्या रखती है? 11 प्लेयर्स। क्या लिखेंगे? ऐसा कोई वर्ब और प्रिपोजिशन का कॉम्बिनेशन है जिसको यहाँ पे लिखा जा सके? चलिए मैं आपको बताता हूं। कंसिस्ट ऑफ, ईच टीम कंसिस्ट, कंसिस्ट मतलब एकत्रित करना एक तरीके से, मतलब उसके अंदर समाहित रहना। ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स, लगभग सभी टीम 11 प्लेयर्स का समूह होता है, ठीक है? 11 प्लेयर समाहित रहते हैं सभी टीम में, ओके? तो यहां पे क्या लिखेंगे? कंसिस्ट ऑफ। अभी मैं यहाँ पे ऐसे दिक्कत तो नहीं है ना, मैं ऐसे अपोजिट लिख दे रहा हूं, ओके? Now the second line, my mother did not blank my staying, क्या लिखा है? मैं जरा अपने बुक से पढ़ता हूं। My mother did not my staying the night over at my friend's place.
माई मदर डिड नॉट, मेरी माँ ने नहीं किया, क्या नहीं किया। अब जो भी है आगे बढ़ते हैं, उससे अंदाजा लगाते हैं। माई स्टेइंग, मेरे रहने को लेकर के, द नाइट ओवर एट माई फ्रेंड्स प्लेस, मेरे फ्रेंड्स के प्लेस, मेरे जो फ्रेंड के घर पे या उसकी जगह पे मेरा रात रुकना मेरी माँ ने और मना नहीं किया एक तरीके से, या कुछ ऐसा ही होगा। तो क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? व्हाट शुड आई राइट हियर? क्या लिखना चाहिए हमें? अगर कई बार होता है हमारे घर वाले अगर कहीं पे उनको मना करना रहता है तो क्या वो सीधा डिनाई कर देते हैं या फिर ऑब्जेक्शन करते हैं ना। हमारी चीजों से जब सहमत नहीं होते तो ऑब्जेक्ट करते हैं कि नहीं, असहमत होते हैं। तो क्या यहाँ पे होगा? Object to. ऑब्जेक्ट टू, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट टू इज द राइट आंसर। ऑब्जेक्ट टू इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट। द थर्ड, माई मदर ब्लैंक माई ब्रदर एंड मी ब्लैंक एट ऑल लिटिल, क्या लिखा है ये? मिस्चीफ बी मेक, यही लिखा है ना? यस हाँ। माई मदर क्या करती है? मेरी माँ जो है, मेरे ब्रदर, अब माई मदर के बाद आपको यहाँ पे एक वर्ब आना चाहिए ना। माई मदर, माई ब्रदर, इसके बीच में सेंटेंस कैसे कंप्लीट होगा? क्या होना चाहिए? माई मदर, आफ्टर द सब्जेक्ट यू ऑल शुड राइट है वर्ब। वर्ब के साथ आप ब्रदर को कनेक्ट करने के लिए आप कोई प्रीपोजिशन यूज कर लीजिए। अब माई मदर लव्स माई ब्रदर, ये भी सही हो जाता है, लेकिन केवल यहाँ पे वर्ब आ रहा है, आपको वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों यूज करना है। क्या करेंगे? कुछ सोचिए कि मैं ही बताऊं? कुछ भी हो सकता है। माई मदर्स लव्स माई ब्रदर एंड मी, मेरी माँ मुझे, मेरे भाई को और मुझे बहुत प्रेम करती है। फॉर, फॉर भी तो यूज कर सकते हैं। फॉर ऑल द लिटिल नहीं, मिस्चीफ, मिस्चीफ वर्ड है, शरारती के लिए प्यार थोड़ो करेंगी, वो क्षमा कर सकती हैं या थोड़ा सा। तो माई मदर फॉरगिव लिख दीजिएगा यहाँ पे लफ्ज के बजाय। माई मदर फॉरगिव्स माई ब्रदर एंड मी फॉर ऑल द लिटिल मिस्चीफ्स वी मेक। ओके, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Here you all need to write forgives and here you all need to write forgives के साथ कौन सा preposition आता है? for, आप देखेंगे For. आएगा, ठीक है। फॉर के साथ भी तो कभी कई बार कुछ और भी तो आता है, कौन सा? यू ऑल कैन forgive, is it there into your section or not? Actually it is not there, but forgive के साथ हमेशा for आता है, ठीक है, don't worry। नहीं, forgive for ही आता है, लिखा हुआ है, forgive के साथ for आता है, that is correct। Now read the fourth one। all, फोर्थ क्या है? it was difficult, नहीं, कहाँ पे है? जरा बेटा फोर्थ वाला पढ़िए एक बार। are political, yes, all political parties should political, their forces, all political parties, सभी political parties को क्या करना चाहिए? should, should मतलब चाहिए, क्या करना चाहिए, वही है their forces, अपने forces के किसको क्या करना चाहिए? combines their forces। okay, all political parties should combine their forces against the evil of corruption। इसको आराम से ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा टफ था इसलिए डायरेक्टली मैं बता दिया आप सभी को।
ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, दे शुड बी कंबाइन, उनको एकत्रित होना चाहिए। सभी पार्टीज की जब बात किया जाए तो क्या करना चाहिए, क्या लिखा जाना चाहिए? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड कंबाइन, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कंबाइन होना चाहिए, कंबाइन देयर फोर्सेस, अपने ताकत को, अपने लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द इविल ऑफ करप्शन। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आपका प्लूरल है, तो कंबाइन का प्लूरल क्या होगा? कंबाइन होगा, कंबाइंस नहीं होगा। यहाँ पे अगर ये सिंगुलर होता तो जो अगर नाउन आपका जो सब्जेक्ट है जो अगर सिंगुलर होता तो कंबाइन के जगह कंबाइंस करते, लेकिन ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे कंबाइन लिखा गया। समझ में आ रहा है ना? ये सब सारी चीजें ध्यान देने की जरूरत है Yes, sir. जब आप पढ़ें तभी। Yes. Against. Now, the last one is the can you. अब यहाँ पे आप एक बार कोशिश करो, ये बहुत आसान है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है। Gus. कैन यू Sir, Gus. ऑफ द जार, अरे ये तो अभी जस्ट अभी पढ़ा है, क्या है ये? Can you guess the weight of jar at its size? बेटा सबसे पहली बात गस नहीं होता, गैस होता है, Sir, guess. गैस होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, यू करेक्ट, यू करेक्ट। अभी भी आप लोगों ने पढ़ा है, मेरी बुक में ये है ही नहीं, आपकी बुक में है या नहीं? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, Sir, है। चलिए ठीक है, गुड अगर है। अभी इसको बाकी इरेज करते हैं। आई एम हैविंग द ओल्डर एडिशन ऑफ द बुक। फिलहाल जब ये आपका स्कैन कॉपी प्रॉपर नहीं हुआ था, सो आप लोग की बुक्स यहाँ पे रही होगी, मिल गई किसी की बुक। द लास्ट वन इज कैन यू, अभी आपने यहाँ पे पढ़ा है। लेट मी ओपन द where is the thing? Yes, it is generally, अच्छा इसमें है कैन यू, कहाँ पे गया? फ्रॉम एंटरिंग मैच द फॉलोइंग में तो हमने ऐड किया था ना। मैच द फॉलोइंग में No, sir. इसमें नहीं है, आपकी स्कैन कॉपी में नहीं है, बट बुक में है। कैन यू गेस द वेट फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन, यहाँ पे नहीं है। No, sir, मेरे बुक में नहीं। यहाँ पे गेस होगा द वेट ऑफ द जार। कैन यू गेस द वेट ऑफ द जार फ्रॉम इट्स साइज, फ्रॉम इट्स साइज। तो यहाँ पे क्या होगा? कैन यू गेस, GUE, ठीक है। किससे? फ्रॉम, गेस के साथ हमेशा फ्रॉम लगेगा, ठीक है। ओके, अभी क्लियर Yes, sir. आ गया? सभी लोग कर ले जाएंगे, कंप्लीट कर ले जाएंगे। Yes, sir. बेटा द लास्ट क्वेश्चन ओनली 5 मिनट्स इज रिमेनिंग, सो आप सभी को थोड़ा सा कोशिश करना है। इसमें क्या करना है? मेक सेंटेंस, आपको सेंटेंस बनाना है। सबसे मैं थोड़ा सा लेट हो गई बेटा, ऐसा क्यों? थोड़ा क्या मतलब बहुत ज्यादा लेट कर गई आप आज? सो के नहीं उठी थी, लेट से जगी? सर आज मीटिंग में ज्वाइन हो रहा था सर, फिर अमन पापा के पास गए थे मीटिंग ज्वाइन करवाने, सर नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था। चलिए कोई बात नहीं, मुझे लगा सो रही थी। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देखना। जो बच्चे एब्सेंट होंगे वो सो रहे थे, ये अच्छा है। कौन कौन सो रहा है अभी? किसको नींद आ गई दोबारा? नहीं, आज सभी लोग कनेक्टेड हैं। आज सभी को सुबह की एनर्जी कुछ अलग ही होती है। सिद्धार्थी भी कनेक्टेड रहते हैं, देखो बढ़िया जैकेट वगैरह पहन के। चलो ठीक है, पढ़ते हैं। मेक सेंटेंस विथ दीज वर्ब प्रीपोजिशन कॉम्बिनेशन। ये बेटा यहाँ पे कुछ वर्ब एंड प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन ऑलरेडी दिए गए हैं। यू हैव टू यूज दीज वर्ब प्रीपोजिशन वर्ड टू मेक अ सेंटेंस। अब जैसे गेस एट, यहाँ पे जो आपने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स किया था, गेस और फ्रॉम का यूज किया था ना। Yes, sir.
But what you have to do, you have to write a sentence, you have to make a sentence जहां पे गेस के साथ एट का यूज किया गया हो, गेस के साथ एट का यूज किया गया हो। जैसे कि आपको एग्जांपल दें, कैन एनीवन गिव द एग्जांपल? कोशिश करिए। I guessed at the correct answer। जब अभी आपको ऑब्जेक्टिव तरह के क्वेश्चंस रहते हैं तो उसमें में से आप किसी एक को जब नहीं आता तो गेस ही तो करते हैं। यस सर। Yes, आप गेस के साथ के अलावा क्या एट यूज कर सकते हैं, एक बार कंफर्म करने के लिए देखिए, गेस के साथ एट एंड फ्रॉम दोनों दिया है। फ्रॉम का यूज आप फिल इन द ब्लैंक्स में किए थे। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है इसी को देखते हैं क्या लिखा है। देयर इज एग्जांपल ऑफ फ्रॉम। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेस फ्रॉम द एक्सप्रेशन इफ शी वाज सीरियसली ऑफेंड। गेस फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, किसी एक्सप्रेशन से गेस करना बहुत कठिन है। कभी भी आप कहते हैं किसी मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज से अंदाजा लगाना मुश्किल है, या किसी भी पर्टिकुलर चीज पर अंदाजा लगाना, दोनों तरीके से बोल सकते हैं ना। तो यू हैव टू यूज द गेस एट। आप इसमें अगर मान लीजिए जो फिल इन द ब्लैंक्स था, अगर उसके जहां पे एट यूज करते तो क्या वो सही रहता? लेट अस चेक। कैन यू गेस द वेट ऑफ द जार एट इट्स साइज? नहीं, जार फ्रॉम इट्स साइज होगा। एट यहां पे रॉन्ग लग जा रहा है, रॉन्ग हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर Yes, sir. कैन यू गेस एट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन Yes, ऑप्शन? जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से करेक्ट आंसर को आप गेस कर सकते हैं। कैन यू गेस एट द करेक्ट आंसर? क्या आप करेक्ट आंसर को गेस कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन ऑप्शन? जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, या इन द गिवन आंसर, जो भी आंसर दिए गए हैं, या इन द गिवन आंसर। सो इन दिस वे यू हैव टू मेक अ सेंटेंस फॉर ईच एंड एवरी वर्ब प्रीपोजिशन। ओके। अब प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट मतलब एक तरीके से जैसे आपने प्रोहिबिटेड मतलब वर्जित है ना, प्रिवेंट मतलब मना करना। प्रोहिबिटेड कहीं ना कहीं लीगल वे में यूज किया जाता है। प्रिवेंट फ्रॉम किसी चीज से मना करना। अब इसका यूज थोड़ा सा आप एक बार कोशिश करें, या कमिटेड टू का एक बार कोशिश करें। कमिटेड टू, आई एम कमिटेड टू हैव दिस वन। आई एम कमिटेड टू स्टडी, आई एम कमिटेड टू टीच each and every child. I am committed to complete the syllabus. In this way many sentences you can frame. In the same way prevent from का एक बार सेंटेंस कोई कोशिश करे बनाने की। कई बार आप वाटरिंग जब करते हैं प्लांट्स को, क्या करते हैं? वाटरिंग प्रिवेंट्स प्लांट्स फ्रॉम डाइंग। चलिए ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग एक बार कोशिश करिएगा, कई सारे सेंटेंस बनाने की। नहीं कोशिश कर पाएगा तो इसको खोज लीजिएगा। आपको जो एग्जांपल दिए हुए हैं जो यहाँ पे, इसमें से आप जो वर्ब प्रीपोजिशन के सेंटेंस दिए हैं इसमें से खोजिएगा। इससे हेल्प लेकर के आप दूसरा अपना खुद